کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ غلطی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا جب غلطی کرنا ضروری تھا. میری بات پر کیتھی براؤن نے کہا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ باتیں تم ہمارا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا, ہرگز نہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک اٹل حقیقت ہے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی وضاحت تو کرو گے نہیں, لہٰذا ہماری سمجھ میں کیا خاک آئے گا. میں نے کہا, سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کیتھی براؤن کی تحریک پر ہوا. کیتھی کا موقف تھا کہ میں رینڈل کو ڈھیل دے رہا ہوں, پھر جنرل ٹیرس اور تم بھی اس کے ہم نوا بن گئے. میں نے تم لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا. نتائج سے پتہ چلا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہی درست تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب رینڈل کو مزید ڈھیل دینے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا, لہٰذا مجھے بتا دو کہ اب مجھے اس کے خلاف کیا قدم اٹھانا چاہیے. جنرل ٹیرس نے کہا, بھائی تم تو کیتھی کے پیچھے ہی پڑ گئے. مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی میں نے اس کی بات کاٹ دی. میں سنجیدہ ہوں جنرل, مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے. کوئی کچھ نہ بولا. میں نے کہا, میری ایک تجویز ہے جنرل. ہم نے ایک غلطی کر دی اور اس غلطی کی ہی وجہ سے بہتری کی ایک صورت نظر آئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو چکی ہے اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اس غلطی کو مزید آگے بڑھانا ہوگا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رینڈل کتنے پانی میں ہے. تہذیب نے الجھے ہوئے انداز میں کہا, غلطی کو آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں تمہارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان باپ بیٹوں کو گرفتار کر کے؟ میں نے کہا, نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں رینڈل کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی تلاش میں کوشاں ہوں اور اس کام کے لیے گوئٹے ہل کی سرکاری ایجنسیوں سے مدد لینے سے بھی دریغ نہیں کر رہا. اس پر یہ تاثر تو پڑ چکا ہے مگر اسے مزید گہرا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے اگر اس کی تصویر تقسیم کر کے بڑے پیمانے پر سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں کو اس کی تلاش پر مامور کر دیا جائے؟ میری تجویز سن کر کیتھی براؤن اچھل پڑی. بولی, اب تم واقعی سنجیدہ نظر آ رہے ہو. یہ کام ضرور ہونا چاہیے, اسے ڈھیل دینا ٹھیک نہیں ہے. جنرل ٹیرس نے پریشانی سے کہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی تصویر نہیں ہے. میں نے کہا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ابھی پینسل سے اس کا خاکہ بنائے دیتا ہوں. کسی آرٹسٹ سے اس کی تصویر بنا کر اس تصویر سے ہزاروں نقلیں تیار کروائی جا سکتی ہیں. جنرل ٹیرس نے مستربانہ انداز میں کہا, تو پھر اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. تہذیب بولی, سوال یہ ہے کہ اب وہ اپنی اصل صورت میں کہاں نظر آئے گا؟ تمہاری طرح وہ بھی میک اپ کا ماہر ہے. میں نے مسکرا کر کہا, مجھے تمہارا جواب دہرانا پڑے گا, ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کیتھی براؤن نے جوشیلے انداز میں کہا, بالکل ٹھیک ہے, اسے جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچاؤ. تاکہ بٹ نے حیرت سے کہا, تاکہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ صبح ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے. میں نے جلدی سے کہا, کچھ نہیں. اگر بٹ کو معلوم ہو جاتا کہ کیتھی کیا کہنے والی تھی تو وہ ہمارا جینا دو بھر کر دیتا. 2 بجے دوپہر تک آرٹسٹ کی بنائی ہوئی قلمی تصویر کی ہزاروں کاپیاں گوئٹے ہل کی مختلف ایجنسیوں کے کارندوں میں تقسیم کی جا چکی تھیں, اور 2 بجے کے بعد یہ عالم تھا کہ رینڈل اگر کسی کھڑکی سے بھی جھانکتا تو اسے دیکھ لیا جاتا. گوئٹے ہل کا شاید ہی کوئی ایسا چپا بچا ہو جہاں رینڈل کو تلاش نہ کیا جا رہا ہو. آرٹسٹ نے قلمی تصویر میری نگرانی میں بنائی تھی. میرے بنائے ہوئے خاکے میں جو خامیاں تھیں وہ میں نے آرٹسٹ سے دور کرا دی تھیں, اور اب وہ تصویر کسی کیمرہ فوٹو سے کم نہیں تھی. تہذیب نے مجھ سے پوچھا, کیا رینڈل کو اس طرح تلاش کرانا کوئی غلط قدم ہے؟ میں نے کہا, اس کی بجائے یہ سوچو کہ اگر رینڈل مل گیا تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. تہذیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا, یہ نکتہ بھی اہم ہے. اس کے ملنے پر اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مناسب سا چارج لگا کر اسے دھر لیا جائے. کیا خیال ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا, فی الحال میں اپنا خیال محفوظ رکھتا ہوں. جس طرح بنگلہ نمبر 84 کے چھاپے میں تم انچارج تھیں, تا حکم ثانی اسی طرح انچارج رہو گی. تہذیب نے سرخم کرتے ہوئے کہا, جو حکم آلی جا, لیکن اس بندی سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, اس لیے کہ تم تنہا تو نہیں ہوگی. جس قدر افرادی قوت کی بھی ضرورت محسوس کرو گی مہیا ہو جائے گی. تہذیب نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا, اور تم؟ میں نے کہا, میں اور تم الگ الگ رہ کر کام کریں گے. میرا خیال ہے رینڈل پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ذرا غیر روایتی قسم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تہذیب بولی, ویسے علی, مجھے توقع نہیں ہے کہ رینڈل اپنی اصل شکل و صورت میں منظر عام پر آنے کی حماقت کرے گا, اور غالباً تمہیں بھی توقع نہیں ہے, اسی لیے تم نے الگ الگ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ میں نے مسکرا کر کہا, تم غلط بھی کہہ رہی ہو اور درست بھی. تہذیب نے الجھ کر کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات بیک وقت درست بھی ہو اور غلط بھی؟ میں نے کہا, تمہیں معلوم ہے کہ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا, لہٰذا وقت کا انتظار کرو. وقت آنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور تہذیب کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا. شام 8 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ رینڈل ایگزیکٹو کلب میں موجود ہے. ایگزیکٹو کلب دراصل ایک ہوٹل تھا جس میں رہائش اور کھانے کے علاوہ چند مختلف قسم کی تفریحات کا بندوبست بھی تھا, اور اسی رعایت سے اسے کلب کا نام دے دیا گیا تھا. رینڈل کی بازیابی کی اطلاع نے ٹیرس محل میں جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑا دی.
कैथी ब्राउन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम दिल जमई से उसे तलाश करो तो वो बचकर नहीं निकल सकता। अब देख लो, हमने मुनज़्ज़म पैमाने पर काम किया तो वो मिल गया। जनरल टेरिस ने कहा, अली में ये खराबी तो है, दूसरों से मदद लेने को ये खामखा अपनी हतक समझता है। अगर ये अपनी खामी दूर कर ले तो बहुत काम का आदमी बन सकता है। मैंने कहा, मैं कब दूसरों से काम लेने को आर समझता हूँ, लेकिन ये कि गैर जरूरी तौर पर भी दूसरों से काम लेना अच्छा नहीं लगता। तहजीब ने कहा, यहाँ बैठकर बातें करने की बजाय उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, इस मामले में इंचार्ज मैंने तुम्हें बनाया है, ये देखना तुम्हारा काम है कि इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए और किस तरह लिया जाए। मैं तो अपना काम करने जा रहा हूँ। तहजीब को वहां से रवाना होने के लिए तैयारियां करनी थी, लेकिन मैं आजाद था। मुझे जो काम करना था वो ड्राइविंग के दौरान भी किया जा सकता था, और वो काम था मेकअप, इंतहाई हल्के किस्म का मेकअप। चुनाचे 15 मिनट की ड्राइव के बाद जब मैं क्लब पहुंचा तो मेरे चेहरे पर मूंछों और फ्रेंच कट दाढ़ी का इजाफा हो चुका था, लेकिन ये ऐसा मेकअप था जिसमें मुझे शनाख्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। रेंडल मुझे डाइनिंग हॉल में नजर आ गया। डाइनिंग हॉल में चंद मेजें ही आबाद थीं। रेंडल अपनी मेज पर तन्हा था। उसकी मेज पर मौजूद खाने के बर्तनों को देखकर अंदाजा होता था कि वो खाना तकरीबन खत्म कर चुका है। मैं उसके बराबर वाली मेज पर बैठा। रेंडल खाने में इस कदर मुनहमिक था कि उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने अपने लिए कॉफी मंगवा ली। मेरा मुकाबला रेंडल से था, जिसे जहानत के एतबार से किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता था। न सिर्फ जहानत बल्कि जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से भी वो किसी से कम नहीं था। उसका यूं मंजर आम पर आना मेरे लिए लम्हा फिक्रिया था, मगर मुझे इसकी तवक्को थी। गोइटे हिल में मेरी पोजीशन मजबूत भी थी और कमजोर भी। मजबूत इस एतबार से कि मुझे वहां किसी सरकारी एजेंसी से कोई खतरा नहीं होता था। मैं आजादाना तौर पर बेखौफ खतर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकता था। मेरी पोजीशन कमजोर इस एतबार से हो जाती थी कि मुझे बहुत ख्याल से काम करना पड़ता था, मुबादा मेरे किसी अमल से हुकूमत पर कोई हर्फ ना आए। मेरा ख्याल था कि रेंडल मेरी इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मुझे वहां बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डाइनिंग हॉल के दरवाजे में तहजीब नमूदार हुई। उसके अकब में 2 बावर्दी मुसल्ला अफराद थे। तहजीब तीर की तरह रेंडल की मेज की तरफ बढ़ी। रेंडल ने तहजीब को 2 मुसल्ला अफराद समेत अपनी मेज की तरफ आते देखकर उसकी तरफ निगाह उठाई। उसकी निगाहों में अजनबियत थी। तहजीब ने उसकी मेज के पास आकर रुकते हुए कहा, मिस्टर रेंडल हावर्ड। दोनों मुसल्ला अफराद रेंडल के अकब में जाकर खड़े हो गए। रेंडल ने हैरत से कहा, जी हाँ, मैं ही रेंडल हावर्ड हूँ, लेकिन मुझे हैरत है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। ताहम आप तशरीफ रखिए, मुझसे कोई काम है क्या? तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो और ये बात भी तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई मौका नहीं है। तुम बुरी तरह घिर गए हो। रेंडल ने कहा, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खातून? उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। बोला, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे फरार होने की क्या जरूरत है? तहजीब बोली, आज तुम्हारी कोई चालाकी तुम्हारे काम नहीं आएगी, खुद को जेरे हिरासत तसव्वुर करो। रेंडल ने कहा, मगर किस जुर्म में? तहजीब बोली, गोइटे हिल में गैर कानूनी तौर पर दाखिले और रिहाइश के जुर्म में। वो बोला, मालूम होता है आपको किसी किस्म की गलत फहमी हो गई है। तहजीब ने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। बोली, अगर तुम शराफत से नहीं चलोगे तो तुम्हें यहाँ से हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाएगा, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि शराफत से हमारे साथ चले चलो। रेंडल बोला, मैंने कोई जुर्म किया हो तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करूं? तहजीब बोली, तुम्हारा जुर्म मैंने तुम्हें बता दिया है और मैं ज्यादा वक्त जाया करने के मूड में नहीं हूँ। रेंडल ने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा, इसके अलावा तो मुझ पर और कोई फर्द जुर्म नहीं है। मैं ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। एक मैं ही नहीं, हॉल में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज वही मेज थी जहाँ रेंडल मौजूद था। तहजीब ने कहा, और किसी फर्द जुर्म की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा एक ही जुर्म बहुत काफी है। रेंडल ने एक तवील सांस ली और जेब से पासपोर्ट निकालकर तहजीब की तरफ बढ़ा दिया। बोला, अपनी गलत फहमी दूर कर लें खातून। तहजीब ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए पासपोर्ट उसके हाथ से झपट लिया। पासपोर्ट फ्रांसीसी था, ये तो मैंने दूर से ही देख लिया, लेकिन उससे आगे मैं कुछ न देख सकता था। लेकिन तहजीब तो मेरे सामने थी और उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात भी मेरी नजरों के सामने थे। मैंने उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरते देख लिए थे और मुझे अंदाजा हो गया कि रेंडल के पासपोर्ट पर गोइटे हिल का न सिर्फ वीजा मौजूद था बल्कि उस पर इमिग्रेशन की मोहर भी थी। रेंडल ने पुरसुकून लहजे में कहा, अच्छी तरह देख लें खातून, इस पासपोर्ट पर पेरिस में गोइटे हिल के सिफारत खाने ने वीजे की मोहर लगाई है और गोइटे हिल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन की मोहर भी मौजूद है। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये दोनों चीजें जाली भी हो सकती हैं। वो बोला, आप अपने जराए से तस्दीक कर सकती हैं। तहजीब बोली, ठीक है, मैं पासपोर्ट ले जा रही हूँ, तस्दीक करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। वो बोला, जरूर ले जाइए, मगर पासपोर्ट की रसीद इनायत करती जाइए। तहजीब ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, तुम कहाँ ठहरे हुए हो?
रेंडल ने मुस्कुरा कर कहा, इसी क्लब में, और पुलिस हेड ऑफिस में इसकी एंट्री भी करवा दी है। आप इसकी तस्दीक भी कर सकती हैं। तहजीब ने उसे घूर कर देखा। वो गुर्राई, अपने मखसूस इख्तियारात के तहत मैं तुम्हें बगैर वजह बताए भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। रेंडल ने निहायत इत्मीनान से कहा, जरूर कर सकती होंगी, लेकिन उस सूरत में आपकी हुकूमत को हुकूमत फ्रांस के सामने जवाबदही करना पड़ जाएगी। फ्रांस की हुकूमत अपने एक शहरी की बिला जवाज गिरफ्तारी पर हरगिज खामोश नहीं बैठेगी। उसकी बात माकूल थी और उसमें वजन था। जब रेंडल के पास कागजात मौजूद थे तो उसे आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तहजीब बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर ये मत समझना कि तुम बच गए हो, मैं बहुत जल्द दोबारा आऊंगी। तहजीब एड़ियों के बल घूम कर वापस चली गई। दोनों मुसल्ला मुहाफिज भी उसके साथ ही वापस चले गए थे। ये एक ही दिन में रेंडल की दूसरी बड़ी कामयाबी थी और मुझे पहले से इसका अंदाजा था कि रेंडल अगर मंजर आम पर आया तो किसी मजबूती की बिना पर ही आया होगा। थोड़ी देर के बाद मैंने बिल अदा किया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने का इरादा ही किया था कि अकब से रेंडल की आवाज सुनाई दी, अब ऐसी भी क्या बेमुरव्वती कि तुम बगैर मिले ही चले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाई और उसकी मेज पर जा बैठा। मैंने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे भी पहचानने से इनकारी ही ना हो जाओ। रेंडल ने एक तवील सांस ली, बोला, वो मेरी मजबूरी थी। तहजीब के पास माइक्रो टेप रिकॉर्डर था, लिहाजा मैं अपनी जबान से एक भी लफ्ज नहीं निकाल सकता था जो मेरे लिए मसाइल खड़े कर दे। मैं हैरत से रेंडल को देखने लगा। वो शख्स हमेशा अपने साथ ऐसी चीजें लिए फिरता था जो इस किस्म के आलात की निशानदही कर देती थी। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ? उसने कहा, मेरी दीदा दलेरी की कोई वजह तो होगी। जब मैं पस पर्दा नहीं होता तो हर तरह से मुसल्लाह रहता हूँ, मालूम नहीं कब कौन कहाँ से वार कर जाए। मैंने कहा, तुम जैसे पाए के एजेंट को इतना ही मोहतात रहना चाहिए। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तंज कर रहे हो? मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तंज नहीं करता। खुद हिफाजती को मैं बहुत जरूरी चीज तसव्वुर करता हूँ। अचानक उसने मुझे घूरते हुए कहा, मेरे मुकाबले में तुमने तहजीब को क्यों आगे किया? मैंने कहा, वो मेरी मातहत नहीं, साथी है। उसका ख्याल था कि तुम पर काबू पाया जा सकता है, लिहाजा उसने अपने तौर पर यह कदम उठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उसके इरादे क्या हैं। उसने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो? दुनिया जानती है कि तुम दोनों एक जान दो कालिब हो। मैंने मुतफक्किराना अंदाज में कहा, बात तो तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो भी गलत नहीं है। रेंडल ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे जहन में मुझे गिरफ्तार करने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने कहा, दरअसल मेरे अंदर ये खामी है कि मैं किसी बात पर अमल करने से पहले उस पर हर जाविये से गौर जरूर कर लेता हूँ, और इस बात से तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हो। चुनाचे मुझे खुशी है कि मैंने जो कुछ सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन मैं भी उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें जहनी शिकस्त से दो चार न कर दूं। मैंने सर हिलाकर कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें बेसुकूनी में मुब्तला रखना चाहता हूँ। रेंडल के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं होने दूंगा। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, कोई ऐसी चाल बताओ जो मैंने चली हो और नाकाम हुई हो। वो मुझे घूरने लगा, बोला, गालिबन तुम उन चालों की तरफ इशारा कर रहे हो जो तुमने एगलर के खिलाफ चली थी। मैंने कहा, यकीनन मेरा इशारा उसी तरफ है, लेकिन इससे ये कहकर कि अपनी बारात का इजहार मत कर देना कि वो लोग नाअहल थे जिनसे मेरा सामना हुआ। उसने मुझे घूरते हुए कहा, यह हकीकत है, अगर वो नाअहल न होते तो मुझे खुद मैदान अमल में न उतरना पड़ता। मैंने हंसकर कहा, तुम ही कौन सा तीर चला लोगे? मेरा मकसद उसे तैश दिलाने के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने मानी खेज लहजे में कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। मैंने कहा, वक्त तो बाद में बताएगा, मैं तो वो देख रहा हूँ जो मौजूदा सूरत है। मेरा एक हल्का सवार भी तुम न सह सके और मैं तुम्हें रोशनी में ले आया। रेंडल ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सके। मैंने कहा, मैं ओछा हाथ डालने का कायल नहीं हूँ रेंडल, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम मंजर आम से हमेशा के लिए गायब हो जाओ, किसी को कभी तुम्हारा सुराग ही न मिले। रेंडल ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है, तुम जब चाहो अपना ये शौक पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ कोशिश ही नहीं करता रेंडल, कामयाब कोशिश करता हूँ, और हर काम उस वक्त करता हूँ जिस वक्त उसे किया जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम सिफारत खाने के जोर पर अकड़ते फिर रहे हो, लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम्हारी कड़ी निगरानी हो रही है। गोयटे हिल में रहकर तुम कोई साजिश नहीं कर सकोगे। वो बोला, जब तक मैं गोयटे हिल में हूँ तुम मुझ पर हाथ भी नहीं डाल सकोगे। मैंने कहा, तुम तमाम जिंदगी तो गोयटे हिल में नहीं रह सकते रेंडल। मैं जिस वक्त चाहूँ तुम्हारा वीजा मंसूख करवा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा, मुनासिब वक्त का इंतजार। वो बोला, बेफिक्र रहो, वो वक्त कभी नहीं आएगा। वैसे भी शायद परसों तक मैं खुद ही गोयटे हिल से चला जाऊं। मैंने कहा, जब तक चाहो रहो, लेकिन एक बात याद रखना,
मेरी नजरों में आए बगैर तुम गोइटे हिल से निकल नहीं सकोगे। रेंडल ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। बोला, मुझे मालूम है मुल्क से बाहर जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे छुप कर जाने की क्या जरूरत है। मैं कानूनी तौर पर यहाँ आया हूँ और कानूनी तौर पर ही जाऊंगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम जैसे लोग जितने कानूनी काम करते हैं उनसे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। मैं तहजीब मैल्कम एक्स नहीं हूँ और ना ही तुम्हें किसी छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार करना चाहता हूँ, वरना ये साबित करना क्या मुश्किल है कि तुम यहाँ गैर कानूनी तौर पर आए हो। रेंडल ने हंसकर कहा, हर चीज असली है अली, अपने कद से ऊंची बातें मत क्या करो। इस मामले में तफ्तीश करने से भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं रेंडल की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। मैंने कहा, एयरलाइंस के रिकॉर्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेंडल चौंक पड़ा। मैंने कहा, तुमने हर किस्म की मजबूती कर ली होगी, मगर एयरलाइंस के रिकॉर्ड के बारे में तुम भी कुछ नहीं कर सकते। रेंडल खामोशी से मुझे देखता रहा। उसका चेहरा यकायक ही बेतासुर हो गया था। मैंने हंसकर कहा, लेकिन तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। अगर तहजीब का जहन किसी तरह उस तरफ चला भी गया तो मैं उसे रोक दूंगा। रेंडल ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, इसे याद रखना अली कि तुम्हारा अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। मोशे हावर्ड से टकराकर आज तक कोई शख्स सलामत नहीं रहा। मैंने सर हिलाकर कहा, मैं याद रखूंगा। और मैं उसकी मेज से उठने का इरादा ही कर रहा था कि दीवारों पर नस्ब स्पीकरों से नशर होने वाली मध्यम मौसीकी थम गई और मेरा नाम लेकर ऐलान किया गया कि मेरा फोन है। मैं चौंक पड़ा। यहाँ इस तरह फोन किए जाने का मतलब ये था कि कोई इंतहाई गैर मामूली बात है। मैं रेंडल से कुछ कहे बगैर फोन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ बड कह रहा था, अली ग्रुप के मकामी हेडक्वार्टर में जबरदस्त धमाका हुआ है। इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ एक निगरान के अलावा कोई मेंबर मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान अलबत्ता जख्मी हुआ है, मगर खुदा का शुक्र है कि ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। रिसीवर पर मेरी गिरफ्त बेहद सख्त हो गई और मैंने शोलाबार निगाहों से रेंडल को देखा, जो अभी तक अपनी मेज पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, जो होना था हो गया बड। मेरा लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। फिर कहा, तहजीब जो मुनासिब समझेगी कर लेगी। मैं टेरिस महल जा रहा हूँ, फुर्सत मिलते ही तुम भी वहीं आ जाना। फोन बंद करके मैं रेंडल के पास गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे कारनामे की इत्तला मिल गई है रेंडल। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मुश्तइल कर दिया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। रेंडल ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या बात हो गई? मैं तुम्हारे अंदाज में गुस्से की झलक देख रहा हूँ। मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर वहां से निकल आया। खून मेरी कनपटियों में ठोकरें मार रहा था। धमाके का जिम्मेदार रेंडल के अलावा और कोई नहीं था, मगर बदकिस्मती ये थी कि मैं फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मसलहतें आड़े आ रही थी। अगर यह मामला किसी और मुल्क में हुआ होता तो मैं रेंडल को फौरी तौर पर सजा दिए बगैर न रहता। मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। मैं ऐसी कोई तदबीर करना चाह रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन ये काम आसान नहीं था और मुझे हर कीमत पर यह काम करना था। इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ मैं टेरिस महल पहुंचा। मैंने रेंडल को शिकंजे में कसने के लिए एक खाका तरतीब दे लिया था, बस उसमें रंग भरने की कसर रह गई थी।